हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री जो है ऑन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट चैप्टर। यानी देखा जाए तो हम यहाँ कक्षा 11वीं का इतिहास करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात पे, हर एक टॉपिक के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर चीज़ का एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों RNC सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter on the empire across the 3 continents, you know that is the most important chapter on a empire across the 3 continents. And the next questions arrive is the most important here. How was the infrastructure during the Roman Empire? This is an important question here. How was the infrastructure during the Roman Empire? You know that this is important. The infrastructure system is ancient Rome was a complex. The infrastructure system is ancient Rome was a complex. A system of 13 Rome adequates are provided to the inhabitant of the Rome with the water of the varying equality, and the base began to reserve for the potable supply. There is the most important infrastructure on this period of time here. Water was the use of public bath and the latrine, and various types of latrine in the system has been to found in many places, such as the house state, Roman fort, and the Herodans, as well in the Pombil and Herculum, and as well that is a flash away based away with the stream of water. Romans used the sea sponges on their sticks and dipped in the vinegars after the defecations. This is important. The Roman had a complex system of sewers as covered by the stone. The Roman had a complex system of sewers as covered by the stone, and they recycled republics is a bath waste, and water by using it is a part of the flow that flashed their latrine. Terracotta is a piping was used in the pumping that carry waste water from home. You know that is the most important system here on this period of time. The Romans were the first to be seal pipes in the concrete to be resist their high water pressure, and developing in the Siphon and the as well. And beginning around the 5th century BC, cities officially called Adelais and supervised to be sanitary system, and they were responsible for their efficiency of the drainage and sewage system, the cleansing and the paving of the streets, a prevention of the foul smell, and general oversight of the breathless as taverns and bath and other water supplies. This is important. The Roman dervish was often left to collect the valley. Else, there is a between to the building in their poor district of the city. The Roman rubbish was often left to be collected in a alleys between two buildings in the poor district of the city. It has sometimes become so thick that stepping
stone were needed. The stepping stone were needed, and the Empire of Rome, especially the city itself, had a high demand for water. The average Roman consumed over 200 gallons of water per day. The average Roman consumed over 200 gallons of water per day. And wealthy household had a water supply to be their statement, unlike many poor who could not afford this. Even these people enjoy the luxury of Rome as public bath and fountain and public toilet equipped with the sink. This is important. The river Tiber was the city as a main water source before an aqueduct were constructed. As the population of the Rome increased, however, the Romans' taste for water became too much for the river to supply. That's important. There is a Romans' taste for water become too much for the river to supply. The paved roads were all constructed so they would be require minimal as amount of repair and provide a very smooth surface for traveling. It's important. हमारे समक्ष जो चैप्टर आया है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा कैसा था। यानी रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा, बुनियादी का अर्थ दोस्तों ये होता है कि उस समय खान पान, पानी के सीवेज की सिस्टम कैसी थी, किस प्रकार से उस समय व्यवस्था थी। जैसे हड़प्पा कल्चर में हमने देखा, मेसोपोटामिया में देखा, तो रोमन साम्राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था को जो है प्रावधान किया गया था, किस प्रकार से इस समय सिस्टम थी। तो कई हद तक ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो है सामाजिक तौर पे इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम व्यू से। देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के दौरान बुनियादी ढांचा की अगर हम बात करें तो ये साफ करता है कि प्राचीन रोम में बुनियादी ढांचा प्रणाली जटिल थी, यानी काफ़ी उलझी हुई थी, काफ़ी जटिल थी। कहते हैं 13 रोमन जल सेतुओं की एक प्रणाली थी जो रोमन निवासियों को अलग अलग गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराता था। देख लीजिए 13 रोमन जल सेतु का उस समय प्रावधान था जो अलग अलग गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराया जाता था, जो कि काफ़ी महत्व रखता है, जिसमें सबसे अच्छा पानी योग्य आपूर्ति के लिए आरक्षित था। यानी जो अच्छा आपूर्ति पानी करता था उसको उस समय आरक्षित करके रखा जाता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं पानी का उपयोग सार्वजनिक जो है स्नान घरों और शौचालयों में भी किया जाता था। ठीक है, ये काफ़ी महत्व रखता है कि पानी का उपयोग सार्वजनिक स्नान घरों और शौचालय में किया जाता था और कई स्थान पर निम्न प्रकार की शौचालय प्रणाली पाई गई। यानी जनरल सी बात है कि जो क्षेत्र विकसित थे वहाँ पर उच्च कोटि की जो है शौचालय प्रणाली पाई गई और जहाँ पर जो है निम्न कोटि की प्रणाली थी वो पिछड़ी हुई क्षेत्र था। जैसे कि हाउस स्टेड पंपोई में हेडियंस की दीवार पर एक रोमन किला, हरकुलेनियम और अन्य जगहों पर जो पानी के धारा के साथ अपशिष्ट को बहा देती थी। रोमन लोग शौच के बाद समुद्री स्पंज को छड़ी पर रख कर सिरके में डुबाते थे। तो देखिए इस समय का ये बुनियादी ढांचा था कि ये लोग जो होते थे हरकुलेनियम्स और अन्य जगहों पर जो पानी की धारा के साथ अपशिष्ट को बहा देते थे और रोमन लोग शौच के बाद समुद्री स्पंज को छड़ी पर रख कर सिरके में डुबोते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय प्रावधान किया गया था, सिस्टम था। रोमनों के पास पत्थरों से ढके सीवरों की एक जटिल प्रणाली थी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि रोमनों के पास पत्थरों से ढके सीवरों की एक जटिल प्रणाली थी। उन्होंने सार्वजनिक स्नान के अपशिष्ट जल को जो है शौचालय में प्रभावित होने वाले प्रवाह के हिस्से के रूप में उपयोग करके जो है पुण्य चक्रित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली थी कि पत्थरों से ढके सीवरों को एक जटिल प्रणाली थी। यानी उस समय पाइप की लाइन बनाई नहीं जाती थी, सिर्फ सीवर बनाई जाती थी, उस पर जो है पत्थरों से ये लोग ढक देते थे, जो काफ़ी जगहों पर देखने को मिला है। उन्हें सार्वजनिक स्नान के अपशिष्ट जल को शौचालय में प्रभावित होने के वाले प्रवाह के हिस्से के रूप में उपयोग करके पुण्य चक्रित भी किया करते थे।
और टेराकोटा जो है पाइपिंग का उपयोग घरों में अपशिष्ट जल को जाने वाली पाइपलाइन में भी किया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सोचते होंगे कि उस समय पाइपलाइन कैसे होती थी, कैसे बनाया जाता था। तो सब बहुत ही आसान होता है। हम बम्बूस के बारे में तो जानते ही है। बम्बू जो होता है खोखला होता है अंदर से, उसके जो है हम खोखले को जो है चीर देते हैं बीचों बीच, और उसके जो रुकावट होती है उसको साफ़ कर देते हैं और फिर उसको ज्वाइंट करके बना देते हैं। तो ये जो पाइप थी बहुत काफ़ी उपयोगी थी और ये कई जगहों पर आज भी इस्तेमाल किया जाता है गांव के क्षेत्रों में। ऐसे तो हम जानते हैं कि आज प्लास्टिक के पाइप बहुत भरमार है, लेकिन उस समय इसी तरह के प्रावधान करके जो है पाइपलाइन का उपयोग की जाती थी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भेजने के लिए। साइफन और अन्य जगहों पर पैदा होने वाले उच्च पानी के दबाव का विरोध करने के लिए रोमन ने सबसे पहले जो है पाइपों को कंक्रीट में सील कर दिया था। यानी उस समय कंक्रीट का भी बखूबी प्रयोग की जाती थी। पाइपों को कंक्रीट में सील कर दिया, जैसे आप लोग डैम को देखते हो, डैम बनाई जाती है आधुनिक युग में। तो कुछ हद तक वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के प्रावधान किया गया था। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में शहर के अधिकारी, जिन्हें एडाइलस कहा जाता था, स्वच्छता प्रणाली की निगरानी करते थे। यानी उस समय स्वच्छता प्रणाली की निगरानी करने के लिए अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था, जिनको एडाइलस कहते थे। एडाइलस का काम होता था स्वच्छता प्रणाली का जो है जांच परख करना। वे जल निकासी और सीवेज प्रणाली की दक्षता, सड़कों की सफाई और पक्कीकरण, दुर्ग की रोकथाम और वेश्याशालाओं और शराबखानों, स्नानघरों और अन्य जल आपूर्ति की सामान्य निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। यानी ये जो थे एडाइलस काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, जिनका सारा जो है उस समय कार्यभार सौंपी जाती थी, चाहे वो वेश्यालय क्यों न हो, शराब खाने क्यों न हो, स्नान घर क्यों न हो। इवन की सफाई के भी विशेष ध्यान इनके द्वारा ही दिया जाता था। रोमन कूड़े को अक्सर जो है शहर के करीब जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी रोमन जो लोग होते थे कूड़े करकट को अक्सर शहर के गरीबी जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ देते थे। तो समझ गए ना कि उस समय गरीबों के साथ वही व्यवहार होता था जो आज के समय में भी हो रहा है। गरीब जहाँ रहते हैं वहाँ पर कूड़ा करकट का तो आपको पता ही कि ढेर रहता ही रहता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो रोमन में भी कुछ इसी प्रकार के जो है दृश्य देखने को मिला कि रोमन कूड़े को अक्सर शहर के गरीब जिलों में इमारतों के बीच गलियों में इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया जाता था। और ये कभी कभी इतना गाढ़ा हो जाता था कि सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे आज के समय में देखे भी होंगे कि कूड़ों को जो है एक बहुत बड़ी पहाड़ बन जाती है, और ये कई क्षेत्रों में देखने को आम मिलता है। कहते हैं कूड़ा करकट का जो है अगर हम सही तरह से मेंटेनेंस करें तो ये हमारे लिए सरदर्द नहीं बनेगा, लेकिन हर एक समय काल में ये सरदर्द रहा है। और आधुनिक युग में तो और भी सरदर्द बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक का जो बेखूबी से उपयोग हो रहा है, इसका प्रभाव हम देखने को मिलता है। कहते हैं इसमें सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि प्लास्टिक जितना से जितना कम उपयोग हो देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग ना हो तो ही अच्छा है। इसलिए कोई और वैकल्पिक स्रोत ढूंढना चाहिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में कई जगह पर प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। कारण क्या है? सरकार की जो है आलसीपन है और सरकार की मुनाफाखोरी है। सरकार ये लिफाफे जो बनाते हैं, जो ये प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं, उनमें बैन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनसे जो है इलेक्शन में उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इसलिए वो बैन नहीं करते। बेशक राज्य में बैन कर देते हैं, और इस बैन करने में भी उनको बहुत फ़ायदा होता है। आप पूछिएगा कैसे? मान लीजिए कोई क्षेत्र में कोई चीज़ बैन है, अगर आम गरीबों के पास एक भी लिफाफा मिल गया तो उसकी तो ऐसे का तैसे कर देते हैं पुलिस वाले सब। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये तो बैन है, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आपको पता ही होगा कि बिहार में जो है शराब बैन है, वहाँ पर आपको क्या लगता है कि वहाँ पर बड़े बड़े मंत्री जी सके पार्टी होता है और पार्टी में शराब न झलकता हो? ये तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। कोई कहेगा गंगा में भी प्रवेश करके बात बोलेगा तो इसको तो मैं मानना संभव ही नहीं है, क्योंकि जनरल सी बात है, मंत्री जी की पार्टी हो, शराब और शबाब न हो, इसका तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता। तो क्या बिहार में पार्टी नहीं होती है? होती है। फिर आम गरीब बंदों के पास एक शराब के बोतल भी मिल जाता है तो उसके पूरे खानदान को क्यों पुलिस वाले चक्के ले जाते हैं? क्या वहाँ पर कोई लॉ ऑर्डर नहीं है? मैं सबसे पहले कहता हूँ, देखिए
एक ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, जो घर के बड़े लोग करते हैं वही बच्चे लोग भी सीखते हैं। और हमारे लिए राजनीतिक नेता बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं और रिस्पेक्टेड होते हैं और एक सम्मानजनक पद पे होते हैं। अगर यही लोग इस तरह के बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे, गलतियाँ करते रहेंगे, तो आम जनता क्या सीखेगी। मैंने तो कई जगह पढ़ा है कि जब राजा भोग विलास में पड़ जाता है, राजा जब विलासता वाली ज़िंदगी जीने लगता है तो उसकी प्रजा भी जो है विलासतापूर्वक जीवन जीने लग जाता है। और आपको पता है कि इसमें जो है तुलसीदास के समय काल में भी ऐसा ही हुआ था। तब जाकर तुलसीदास ने एक ऐसा कैरेक्टर रामचरितमानस की रचना की जो इनको जो लोगों के समक्ष आदर्श का जो है एक पताका स्थापित कर सके। तो ये हमेशा रही है, जब बड़े लोग ही ऐसी गलती करेंगे तो आम लोगों से तो हम गलती का उम्मीद ही नहीं कर सकते। आम लोग तो गलती के पुतला होता है। तो यही बात मैं कहता हूँ कि जब बड़े लोगों पर रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता है तो आम गरीबों बंदों को ये डर किस बात को दिखाते हैं और क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ तो हमारा है, लाठी भी इनकी है, भैंस भी इनकी है, जो मर्जी चलाए कर सकते हैं। उनको तो सिर्फ आम गरीब बंदों को लूटना है, चाहे वो शराब की बात हो, चाहे लिफाफे बैन की बात हो। कई गरीबों के विपरीत जो इसका खर्च वहन नहीं कर सकते थे, अमीर घरों की बस्तियों में पानी की आपूर्ति की जाती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। यहाँ तक इन लोगों में रोमन सार्वजनिक स्नान घर, फव्वारों और सिंह के सुसज्जित सार्वजनिक शौचालय की विलासिता का आनंद भी लिया करते थे। तो रोम में हर तरह की जो है बातों का यहाँ से अनुसरण करते थे। और रोम साम्राज्य में विशेषकर शहर में पानी की भारी मांग होती थी और औसत रोमन प्रतिदिन जो है 200 गैलन से अधिक पानी का खपत करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 200 गैलन जो है पानी की खपत हमेशा करते थे, रोज़ प्रतिदिन औसत था 200 गैलन का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और देखिए अमीर लोगों के घरों में जो होता था फुव्वारे लगाए जाते थे, वो फुव्वारे का आनंद उठाते थे। हर तरह के विलासितापूर्वक जीवन जो है उस समय वो व्यतीत करते थे। किसी भी जल सेतु के निर्माण से पहले तिब्बर नदी शहर का मुख्य जल स्रोत था। यानी उस समय जो जल स्रोत था वो तिब्बर नदी था। यानी देखा जाए तो इस समय जल सेतु के निर्माण में पहले तिब्बर नदी शहर का प्रमुख जल स्रोत हुआ करता था। हालांकि जैसे जैसे रोम की जनसंख्या बढ़ती गई, रोमों की पानी की प्रति रुचि नदी की आपूर्ति के लिए बहुत अधिक हो गई। जैसे आज भी आप देखिएगा कि आज जनसंख्या भारत में बढ़ रहा है और पानी की आपूर्ति जो है संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसका लिए भी प्रावधान करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि पूर्ति के लिए बहुत ही अधिक जो प्रयत्नों की जरूरत है। सभी पक्की सड़कें इसलिए बनाई गई ताकि उन्हें कम से कम इमारत की आवश्यकता पड़े और यात्री के लिए बहुत चिकनी सतह मिल सके। इसलिए उसमें पक्की सड़कों का भी निर्माण बखूबी करवाई गई थी रोमन एम्पायर में। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी, आधुनिकता थी, हर एक बात हर एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम व्यू से। और आपके समक्ष जो है तिरपान सेंटर इतने सारे पॉइंट प्रस्तुत करता है, आपको जो है किसी भी पॉइंट पे जो अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है। एग्जामिनर मुश्किल से 5 पॉइंट को ही जो है मेन समझता है और 5 मार्क्स में 5 पॉइंट काफ़ी होता है। तो आपको इतने सारे पॉइंट तिरपान सेंटर इसलिए प्रस्तुत करता है कि आप इनमें से कोई भी अच्छे पॉइंट को अपनी कॉपी पे लिखिए और एग्ज़ाम तक जो है तैयारी कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। अगर ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से तिरपान सेंटर को मदद करना चाहते हो और चाहते हो कि समय समय पर आपको वीडियो प्राप्त होता रहे, तो जरना सी बात है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर लिंक कॉपी करना है, व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एमए से लेके जो है 8th क्लास तक बच्चों के सभी वीडियो उपलब्ध है, जिसमें आपको देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।